Hello everyone. So last time we started our new unit which is disposal of sewage. Last time we discussed about the disposal of wastewaters in rivers. Today we are going to start our new topic which is disposal of wastewaters in lakes. Okay. So disposal of wastewaters in lakes or rivers is generally more harmful than its disposal in flowing streams or rivers. Why it is? Because we have generally seen that in rivers that the water is continuously flowing, or you can say the flow currents are very large as compared to lakes. In lakes, the water is in still conditions. Due to what happens, the organic matter starts to accumulate at one place. Their concentration will be high at one place, and due to this, there will be high nuisance, large emission of all gases due to decomposition, like methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and other gases. Okay, so that's why it is more harmful. Okay. Now, the primary pollutant which is generally present in lakes is phosphorus because the industries and the domestic wastewaters generally contains a nutrient which is phosphorus in large amount. So the main primary pollutant here it is phosphorus. Other chemical toxic chemicals from industries wastewaters may also sometimes be very adversely affect some special classes of the lakes. What are these special classes of the lakes? We will discuss later. Okay. Now let's see stratification of lakes. In stratification of lakes, there are generally three layers. Okay, see here, the bottom layer is cold water, which is hypolimnion. The middle surface, which you can say intermediate zone or you can dividing line, it is called thermocline. And the top surface, the depth of the top surface where warm water is present, it is called apolimnion. We have generally seen in the summer season that the top layer, due to the high uh, due to the sunlight, what happens, the surface layer becomes hotter but the bottom layers becomes colder. Due to this, what happens, when there is a storm or any case, this top layer apolemnian layer starts to mix with the lower layers, not to very much depth but to some extent. Okay. तो इस लेयर में क्या होता है कि हमारे पास जो टॉप की लेयर होती है, जब भी कोई विंड वगैरह चलेगी तो क्या होगा, ये अपर लेयर्स जो होती हैं सर्कुलेट होती रहती हैं. ठीक है, बॉटम लेयर तक तो नहीं पहुंच पाते पर अपर लेयर्स जो होती हैं सर्कुलेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस वाटर में एंटर करती रहती है, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होती है. ठीक है, टॉप लेयर्स में. तो जनरली जो भी कोई स्विम करता होगा उसको जनरली पता होगा, जब हम समर्स में स्विम कर रहे होते हैं टॉप सरफेस के पास, तो क्या होता है, वहां पे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, तब वाटर का टेम्परेचर लो होता जाएगा, कम होता जाता है. ठीक है, वहां पे पानी ठंडा होता है. ठीक है, तो इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आ जाती है स्ट्रेटिफिकेशन. ठीक है, तो जनरली हम ये अभी केस कंसिडर कर रहे हैं कब का, समर सीजन में. अब विंटर सीजन में क्या होगा कि जो टॉप लेयर होगी बर्फ जम जाती है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा एप्लिनियम लेयर में, वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो वहां पे मूव करने से क्या होगा, जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि देखो सर्दियों में जो अपर लेयर होगी वो डेंस हो जाएगी, डेंस होने की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगी. तो नीचे की तरफ मूव करेगी तो जो हाइपोलिमिनियम वाला वाटर होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो जब वो हाइपोलिमिनियम वाटर जो होगा, जो लो डेप्थ में वाटर प्रेजेंट होगा, जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऊपर दोबारा डेंस होके और दोबारा सेटल होता रहेगा. ठीक है, सेम प्रोसेस होता रहता है वहां पे. ठीक है, जिसको हम ओवर टर्निंग बोलते हैं. नाउ, अब जैसे जैसे टेम्परेचर और कम होता जाएगा, मीन्स कि अगर 4 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, अपर लेयर जो होगी वो बिल्कुल डेंस हो जाएगी. ठीक है, तो अपर लेयर्स में टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री हो जाएगा, और लो लेयर्स में क्या होगा, लो लेयर्स में टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू द अपर लेयर्स. ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया हुआ है आपको साइड पे, जो ग्राफ है टेम्परेचर और डेप्थ का. देखो, जब टॉप सरफेस पे हम हैं, जब है समर सीजन में, तो क्या होगा, ये हमें ग्राफ दिखाया है समर सीजन का, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पर जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स. इसके बाद हमारे पास मूव करते हैं आगे, जिसमें हमारे पास है बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स. तो बायोलॉजिकल जोन्स इन लेक्स में हमारे पास तीन टाइप के जोन्स होते हैं. एक यूफेटिक जोन होता है, एक होता है लिटरल जोन, और एक होता है बेंथिक जोन. अब यूफेटिक जोन में क्या होता है, यूफेटिक जोन हमें कैसे पता लगता है कहाँ तक हमारा यूफेटिक जोन है. यूफेटिक जोन है देखो, जब हमारे पास जो सनलाइट होगी, वो हमारे पास सनलाइट की रेज जो होगी एंटर करेगी, पेनिट्रेट करेगी सरफेस से. ठीक है, जहां तक वो पेनिट्रेट कर पा रही है, ठीक है, ले रिवर लेक को, तो उस डेप्थ को हम बोलेंगे यूफेटिक जोन. ठीक है,
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां तक हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है लेक, ठीक है, तो उस डेप्थ को हम बोलेंगे इम्फेटिक जोन। इसको हम कैसे पता लगा, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, रूट प्लांट्स या फिर सबमर्ज प्लांट जितनी भी ग्रोथ होती है वो इसी इम्फेटिक जोन में होती है। वो डायग्राम से देख रहे हो इम्फेटिक जोन तक की, यहाँ पे सबमर्ज प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, इमर्ज प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इम्फेटिक जोन की, इसके लिए एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक डिस्क होती है जिसको हम बोलते हैं स्की डिस्क। तो इस डिस्क में क्या होता है, व्हाइट और ब्लैक के पैटर्न्स बने होते हैं। तो इसको हम जब डिप करते हैं इस लेक के अंदर, तो जहां तक हमको वो विजिबल, जब जहां तक हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि व्हाइट और ब्लैक कलर के डिफरेंस को हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, जैसे जैसे वो हम डेप्थ में मूव कर रहे हैं, तो वहां तक स्फेटिक जोन है। जैसे ही वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है कि हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कलर्स को, तो वहां पे हमारा स्फेटिक जोन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल जोन हमारे पास जनरली जो शैलो वाटर, जो सरफेस के पास होता है, शोर के पास जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, जहाँ पे ये रूटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख भी रहे हो इमर्ज प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास लिटरल जोन है। तो ये जनरली डिपेंड करता है कि हमारे पास लेक का स्लोप क्या है, ओके। तो जो लिटरल जोन है इसकी डेप्थ जो होती है, ठीक है, लिटरल जोन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, और जियोफैटिक जोन जो कर रहे हैं वर्टिकली मेजर कर रहे हैं। तो जनरली जो लिफेटिक जोन है वो क्या होता है, ये यूफेटिक जोन से ज्यादा डेप्थ में नहीं होता है। जितनी यूफेटिक जोन की डेप्थ होगी उतना ही हमारे पास लिटरल जोन होगा। थर्ड हमारे पास आता है बेंथिक जोन। अब बेंथिक जोन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, मान लो प्लांट्स पे, प्लांट्स ही मान लो, तो जब ये यहाँ पे इनकी लाइफ टाइम लाइफ खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, इस नीचे आ जाएंगे, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी फ्लोटिंग पार्टिकल सेटलेबल सॉलिड्स हैं बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, वो एक लेयर बना देंगे। तो ये जो बॉटम लेयर होती है इसकी हमारी, हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन में क्या होता है, जनरली हमारे पास बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अदर इंसेक्ट्स या वॉर्म्स इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है बॉटम पे या नहीं, ओके। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन हाई कंटेंट में, हाई रेंज में अवेलेबल है, तो इसका मतलब वहां पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहां पे इंसेक्ट्स या वॉर्म्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन्स आ गए तीन, जूफेटिक जोन, न्यूट्रल जोन और बेंथिक जोन। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेक। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेक क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट ए फूड चेन, ओके। मतलब अगर हमारे पास लेक की ऐसी एबिलिटी है कि फूड चेन को वो सपोर्ट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेक, ठीक है। सिंस जो एल्गी एल्गी होती है हमारी, वो सबसे हमारा बेस होता है फूड चेन का, ठीक है। उसके बाद फूड चेन आगे आगे चलता है। तो हमारे पास अगर एल्गी ज्यादा कंटेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे प्रोडक्टिविटी उस लेक में ज्यादा है। जितनी कम होगी, चाहे जितनी अगर नहीं है अवेलेबल, तो उसका मतलब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है या बिल्कुल कम है, ठीक है। तो इसी प्रोडक्टिविटी के ये इंक्रीज लेवल होता है, इस पे लेक्स को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से लेक्स होते हैं वो, तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिक ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, मेसोट्रॉफिक लेक्स, यूट्रॉफिक लेक्स एंड सेंसेंट लेक्स। अब ओलिगोट्रॉफिक लेक्स वो होते हैं जहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जो एल्गी को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उस लेक्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स उस लेक की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की। तो लो प्रोडक्टिविटी मीन्स अगर एल्गी प्रेजेंट नहीं है तो वाटर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि एल्गी एल्गी प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, टर्बिडिटी होगी कुछ वाटर में। ओलिगोट्रॉफिक में एल्गी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप, एक ताहू लेक है कैलिफोर्निया नेवाडा वाटर पे, वो इसकी एक एग्जांपल है ओलिगोट्रॉफिक लेक्स की। सेकंड हमारे पास आता है मेसोट्रॉफिक। अब मेसोट्रॉफिक में क्या होता है, कुछ मीडियम प्रोडक्टिविटी इसमें होती है, ठीक है। मीडियम प्रोडक्टिविटी मीन्स की मीडियम ग्रोथ ऑफ एल्गी और टर्बिडिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मेसोट्रॉफिक में जो हमारे पास, जैसे जैसे हम बॉटम हिपोलिमियम जोन की तरफ नहीं नीचे मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम होने लगती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूट्रॉफिक लेक्स। यूट्रॉफिक लेक्स में क्या होता है, इसमें प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, मतलब यू कैन से इट हैज हाई प्रोडक्टिविटी बिकॉज इट हैज अबंडेंट सप्लाई ऑफ एल्गल ग्रोथ। तो हमारे पास एल्गल ग्रोथ की जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं इस केस में बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहां पे टर्बिडिटी भी ज्यादा होगी। टर्बिडिटी ज्यादा होने से क्या होगा, जो हमारे पास सुफेटिक जोन होता है, जो मैंने बताया था कि सनलाइट जितनी पेनिट्रेट कर पाई, तो वहां पे सुफेटिक जोन भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ एक्सटेंट तक ही वो इप्लीमियम तक जो लेयर होती है वहां तक जा पाएगा। ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस व्हेन द एल्गी डाई, जब एल्गी की डेथ होती है तो क्या होता है, वो बॉटम की तरफ सेटल करेगी। तो बॉटम में सेटल करने पे क्या होगा, बॉटम पे सेटल होने पे वो चली जाएगी बेंथिक जोन में। तो बेंथिक जोन में क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देंगे उसको। तो डिकम्पोजिशन करने से क्या होगा कि वहां पे उस एरिया में ऑक्सीजन की जो डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में वो कंज्यूम करना शुरू कर देंगे बैक्टीरिया। तो उसकी वजह से जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम जोन में जाते जाएंगे तो ऑक्सीजन कंटेंट कम होता जाएगा। लास्ट हमारे पास आ जाता है सेंसेंट लेक्स। सेंसेंट लेक्स वो होती हैं जहाँ पे हमारे पास मिनिमम शैलो डेप्थ होती है, बिल्कुल शैलो डेप्थ होती है। सेडिमेंट्स जो होते हैं काफी हाई लेवल तक होते हैं बिल्कुल। वहाँ पे रूटेड प्लांट जो होते हैं वो जनरली वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो मीन्स यू कैन से इट हैज हायर प्रोडक्टिविटी। So it is here it is shown in oligotrophic lakes the productivity is almost zero. In mesotrophic lakes the productivity starts to increase. As we move to Simpson lakes it becomes almost very high. Okay. Now next comes to disposal of wastewaters in seawater. So seawater normally contains 20% less oxygen than contained in fresh water of river stream. Okay. Seawater normally contains a large amount of dissolved water. As you see in seawater, there is saline in nature, and in seawater, the aquatic life is also very large. So there is a large number of pollution is also present there. So organic matter, some dissolved matter is always present there. And if we further add the sewage solids, its capacity to absorb that sewage solids is not as high as that of fresh water of a river, or you can say stream. So before disposing of these wastewaters in you can say these, see, you have to various points you have to kept in mind. What are these points? Firstly, the sewage should be discharged in deep sea only. Okay. सीवेज जो आपने डिस्चार्ज करना है वो डीप सी पे करना है। ये नहीं है कि जो शोर्स हैं उसके या जो कैन से बैंक्स हैं उसके वहां पे हमने डिस्पोज कर दिया। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली जब करंट यू कैन से सी टाइड्स आएंगी तो वो अल्टीमेटली जो भी हमारे पास सीवेज होगा दोबारा वहीं पे ला देगा शोर्स पे। तो वहां से उसकी क्या होगी, एस्थेटिक अपीयरेंस भी खराब होगी एक तो, और उसके बाद उसका पॉल्यूशन भी ज्यादा हो जाएगा शोर्स पे। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो सीवेज हमने जो वो करना है डिस्पोज करना है वो जनरली 3 से 5 मीटर डेप्थ पे डिस्पोज करना है। ठीक है। जो सी का सरफेस होगा उसे 3 से 5 मीटर डेप्थ पे हमने सीवेज को डिस्पोज करना है। और डिस्पोज करने के बाद, और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो शोर लाइन है हमारे पास, जो कोस्टल एरिया है वो उससे काफी दूर हो। ठीक है। बिल्कुल कोस्टल में नहीं हो। थर्डली, जो हमारे पास जब हम डिस्पोज कर रहे हैं तो उसके बाद विंड कंडीशंस क्या हैं, जो हमारे पास जो करंट्स आ रही हैं सी की, उनकी वेलोसिटी क्या है, इन चीजों को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर करंट वेलोसिटी ज्यादा है या सी टाइड्स ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब अगर क्या है, जो भी हमारे पास ये होगा सीवेज डिस्पोज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली सीवेज को दोबारा शोर पे ला देगा। ताकि हम अगर हम उसको डीप सी में भी डिस्पोज कर रहे हैं तो क्या होगा, हाई करंट्स की वजह से वो उसको शोर्स पे ला देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं। कोई भी अगर हमें हमारे पास एफ्लुएंट है उसको हम अगर हमने डिस्पोज करना है सी मैरीन कोस्ट में या सी में डिस्पोज करना है तो उसके लिए ये वेरियस पैरामीटर्स हैं, इनकी क्या टॉलरेंस लिमिट होनी चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दी हुई है। पीओडी कितना होना चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होना चाहिए, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना होने चाहिए, ये सभी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है। तो इन्हीं लिमिट के अंदर हमारे पास अगर सीवेज के अंदर पैरामीटर्स ये प्रेजेंट है तभी हम उसको सी में डिस्पोज करेंगे, अदरवाइज it will cause more pollution. Okay. So this is it. So next time we will discuss about disposal of sewage on land. Okay. Till now, okay. Thank you.